This is your Sita ma'am again with a new chapter, chapter 11, directions. So direction, beta, with direction I mean we usually follow left, right as a direction. But in the real sense, what direction means we will study. This is the first time you are going to read about direction. So let us take the examples and then try to understand what does it say. Every morning, Aarti and other school children assemble in the school ground for the morning assembly, and all the children stand facing the stage. But in the stage, you must have seen students standing on the stage and they perform school assembly. And at the school, for the school assembly, here it has taken as an example to make you understand what direction is. See here, this is the picture of the stage where 4 students are standing, and here you can see Aarti is standing near the microphone. See here, Aarti is standing near the microphone when Navita is standing on the right hand side. See here, this is right side of Aarti, and she is standing in the right, and Renu is standing on the left, and this Aarti's back there is Rohan, a boy, he is at the back. So children, this is how Rahul is at the back. This is how we usually speak about direction. And now we commonly use these words for direction: left, right, in front, or behind for direction. But these words are not the exact direction. Yes, that's what I want to say. These are the not way we should speak out. This is not the way we should try to tell what direction is. In the real sense, direction is the position of the things which we want to give the idea of. Like here they are used to give the position of the students in respect to Aarti, so that's why they are using left, right. Okay, but if we find the exact direction with the compass, of course the invention of compass has made it easy for everyone to know the exact direction. Like compass is an instrument to show direction. Look at a compass, you will note that there are 4 basic points. These 4 basic points are on the top, bottom, on the right and the left side of the compass. They are called cardinal direction. They are the 4 points, main points of the compass. See children, this is compass. This is an instrument which helps to find out direction, and it's like a clock, which wristwatch, and usually it has been better known for stating the direction. See, this red color pointer always points to north, and it is used by sailors, mountaineers, trekkers, and especially the one who has to travel a long way, voyager. But it was considered that this instrument have been discovered by the Chinese people, एंड ये चाइनीज़ लोगों ने डिस्कवर किया था. इस इंस्ट्रूमेंट से हमको दिशाएं पता चलती है, और ये 4 दिशा पता चलती है. ये 4 दिशाओं को कार्डिनल पॉइंट्स बोलते हैं, और ये 4 पॉइंट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. यूजुअली हम क्या करते हैं बेटा, हम रेस्पेक्ट टू किसी के, जैसे हम मॉर्निंग असेंबली की स्टेज में हम बताते हैं कि ये स्टेज है, 4 बच्चे हैं, तो ये हमारे राइट में है, लेफ़्ट में है, और ये पीछे है, ये फ्रंट है, ये बैक है. हम इन 4 तरीके से दिशाओं को समझाते हैं, राइट, लेफ़्ट और बिहाइंड या आगे पीछे. पर ये तरीका नहीं है. असली तरीका है कंपास से, जो कि कंपास में कार्डिनल डायरेक्शंस हैं. ये 4 कार्डिनल डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. इसकी मदद से हम डायरेक्शंस बता सकते हैं. अब आता है कि ये डायरेक्शंस जब 4 डायरेक्शंस है, 4 डायरेक्शन में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में हमको बिना कार्डिनल डायरेक्शन या बिना कंपास के हम कैसे बता सकते हैं. बिना कंपास के हम सनराइज़ की मदद से बताते हैं. बेटा हमको पता है कि सनराइज़ इन द ईस्ट एंड सन सेट्स इन द वेस्ट, और सनराइज जिस तरफ होता है उसको ईस्ट डायरेक्शन बोलते हैं, और हम सन की तरफ अगर फेस कर रहे होते हैं तो हमारा पिछला पोर्शन, यानी कि हमारा जो पीछे की तरफ है वो हमारा होगा साउथ. ओके, तो अगर वेस्ट. अगर हम सन की तरफ फेस करके खड़े हैं तो सन की तरफ हमारा फेस है तो हम ईस्ट डायरेक्शन में हैं, और हम सन की तरफ फेस नहीं कर रखे हैं, पीछे है हमारे पिछले वाले पोर्शन को हम बोलेंगे वेस्ट डायरेक्शन. तो हमारा लेफ़्ट हैंड साइड होगा साउथ, तो हमारा राइट हैंड होगा नॉर्थ. इस तरह से हम बता सकते हैं डायरेक्शंस को. ये देखिए यहाँ पे और तरीके से समझाया गया है. यहाँ पे एक
देखिए द हैंड ऑफ द कंपास ऑलवेज पॉइंट्स टू नॉर्थ, जो कि मैंने आपको बताया था कि कंपास का जो कंपास होता है उसका जो डायरेक्शन होता है यहाँ पे एक है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन बताएगा। तो इस साइड हमारा साउथ, इस साइड हमारा ईस्ट और इस साइड हमारा वेस्ट। सेम इसी तरह अगर हम सन की तरफ फेस करके खड़े हैं, सपोज़ ये सन की तरफ हम फेस करके खड़े हैं, तो हम सन की तरफ फेस कर रहे हैं तो ये हमारा ईस्ट है, तो हमारा पीछे वाला हिस्सा वेस्ट है। तो राइट हैंड साइड में हमारा होगा साउथ, तो वेस्ट इधर होगा हमारा नॉर्थ। सो इस तरह से भी हम डायरेक्शंस जान सकते हैं। नाउ लेट अस लुक एट द बैक ऑफ आरती स्कूल एंड फाइंड आउट द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ आरती। अगर हम आरती के डायरेक्शन को हम ध्यान में दें तो ये आरती है जो ईस्ट सन की तरफ फेस करके खड़ी है, तो हमारा राहुल वेस्ट की तरफ हो गया क्योंकि आरती के ठीक पीछे राहुल खड़ा था, और ठीक उसके सामने रेणु एंड उसके पीछे थी राइट हैंड साइड में नविता। तो वही चीज़ मैंने आपको डायरेक्शन के तौर पे बताया, जो कि यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, उसी बात को यहाँ पे डायरेक्शन के तौर पे एक्सप्लेन किया हुआ है। नाउ वाई डू वी नीड टू अंडरस्टैंड डायरेक्शन, हमको इन डायरेक्शंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बेटा हमको इन डायरेक्शन से बहुत फ़ायदा होता है। फ़ायदा इस बात का कि हम रास्ता नहीं भूलते, फ़ायदा इस बात का कि हम टाइम नहीं वेस्ट होता हमारा, हाँ वी गो टू प्लेस विदाउट लूजिंग द टाइम एनर्जी एंड वी टेल एज एट एग्जैक्ट लोकेशन बिल्डिंग्स ऑब्जेक्ट्स एंड हम बिल्डिंग्स की मदद से भी आप अपना डायरेक्शन और लोकेशन बता सकते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो द नॉलेज ऑफ डायरेक्शन। इफ़ वी डू नॉट नो द नॉलेज ऑफ डायरेक्शन ऑफ आवर स्कूल वी कैन गो रॉन्ग। हाँ, हमको अपने हर जगह का रास्ता मालूम होना चाहिए, स्पेशली हम जो यूज़ करते हैं, स्पेशली बच्चों को स्कूल जाना, स्कूल लाने का रास्ता, हम कहीं गुम ना जाएं। गुमने से बहुत मुश्किल होती है क्योंकि बहुत दिक्कत होती है मम्मी पापा सबको। मदर्स विल भी सबसे ज़्यादा मदर फादर वरीड होते हैं कि तुम रास्ता भूल ना जाओ, तो वो हमेशा आपको रास्ता समझाने की कोशिश करते हैं। पायलट्स भी एक ज़माने में यू मे नॉट नो वेयर द लैंड टू लैंड एरोप्लेन, पायलट्स को लैंड करना नहीं समझ में आता अगर डायरेक्शंस नहीं होते, शिप्स रास्ता घूम जाती अगर ओशंस में डायरेक्शंस को समझ नहीं पाते। वी मे नॉट नो वेयर द आइसक्रीम वेंडर इज स्टैंडिंग, देयर विल बी अ कन्फ्यूज़न एवरीवेयर। सही बात है, अगर डायरेक्शंस नहीं होता तो हमको कन्फ्यूजन्स होते हैं, हमारा मार्केट किधर है, हमको किस तरफ से जाना है, किधर मोड़ लेना है, आगे कितना बढ़ना है, कितना नहीं बढ़ना है, इस बात के लिए डायरेक्शंस की बहुत ज़रूरत है। इन ओल्डन टाइम्स द सेलर्स यूज टू फॉलो द मूवमेंट ऑफ सन, ये पहले भी मैंने आपको बताया कि सन की मदद से हम डायरेक्शन जान सकते हैं, बट ड्यूरिंग द डे ये काम करता है, बट एट नाइट डायरेक्शंस के लिए हमको नॉर्थ स्टार सबसे बेस्ट है। अगर हम नॉर्थ स्टार की मदद लें तो हम रात को डायरेक्शंस बता दें। नॉर्थ स्टार में बेटा एक पोल स्टार है, ध्रुव तारा हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को पॉइंट आउट करता है। उसकी मदद से सेलर्स नॉर्थ डायरेक्शंस जान लेते हैं और बाकी सब डायरेक्शंस भी जान लेते हैं। इस तरह से भी हमको डायरेक्शन का पता चल जाता है। इमेजिन द कंडीशन व्हेन द बिग और क्लाउड स्काई, नन ऑफ अस ऑफ कोर्स यूज अ कंपास। एक बहुत बादल वाली रात होती और कंपास यूज़ नहीं कर रहे होते तो हम डायरेक्शन भूल जाते और नहीं पता कर पाते, सेलर्स को भी नहीं पता चलता, फिर कैसे पता चलता डायरेक्शन का? तो यही तो बात है, इसीलिए कंपास की बहुत ज़रूरत होती है। कंपास बहुत सही सटीक जानकारी देता है डायरेक्शंस की। एक बार हमको पता चल जाए जैसे हम किस डायरेक्शन में रहते हैं तो हम कभी रास्ता नहीं भूलेंगे और ये हमारे लिए बहुत कारगर है। एक बहुत छोटा सा चैप्टर है डायरेक्शन के ऊपर में, जिसमें आपको इन सब डायरेक्शन के साथ साथ अभी ये आप वो डायरेक्शन सीखे हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ओके, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट है ना, जिसको हम न्यूज़ भी बोलते हैं। इन सबको हम इंग्लिश में NEWS न्यूज़ बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, यानी कि समाचार। सारे दिशाओं से आने वाली जानकारी को समाचार बोलते हैं और इस समाचार को न्यूज़ बोलते हैं क्योंकि वो हर दिशा से आती है, इसीलिए इसको न्यूज़ बोला जाता है। और आपके लिए ये जानकारी बहुत ज़रूरी है कि आप कहाँ रहते हैं, बच्चे ताकि गुम ना जाए, रास्ता भूल ना जाए, और माँ बाप का भी और टीचर्स का सबसे पहला फ़र्ज़ है कि हम डायरेक्शन आपको समझाएं। पहले ज़माने में कंपास से
मैग्नेटिक कंपास से चाइनीज़ जिन्होंने इन्वेंट वो फॉर्चून के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा कारगर है। आजकल तो मोबाइल में भी कंपास हैं, घड़ियों में कंपास मिलते हैं, तो ये बहुत कारगर चीज़ है, यूज़फुल चीज़ है, और हम इससे डायरेक्शंस पता कर सकते हैं। थैंक यू बेटा। इतना ही चैप्टर के लिए, कुछ पूछना हो तो आप क्लास में पूछ सकते हैं।